Hi guys, so we are going to cover current affairs and we are like starting with July 2020. We'll move backwards and this will be part 1 of the video and we are going to cover Vision monthly magazines in our monthly current affairs series and the video will be prelims oriented right now. Prelims ke baad we will go for mains oriented like coverage of the same magazine. And in this video, we are going to cover all topics related to polity and governance plus international relations. And there are some important topics in this video like the Consumer Protection Act 2019, Chabahar Zahedan Railway Line, Enrica Lexi case, and others. So let's start the video. So first heading is obviously polity and governance. As I said, polity and governance and international relations we're going to cover. So let's proceed for the first topic now. So first topic is India's second voluntary national review. So as the name suggests, voluntary national review. तो national review हो रही है किस चीज की कि हमने कितना काम किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ. ठीक है, तो इंडिया हैज प्रेजेंटेड इट्स सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू at UN's high level political forum meeting. Okay, and who presented this? नीति आयोग. तो आपको ये पता होना चाहिए who presented what. Okay, and कहाँ पे, where. So Niti Aayog presented India's second voluntary national review at UN's high level political forum meeting. So what is UN's high level political forum meeting? So basically this meeting is on sustainable development and this forum was created in 2013 and decision to create this forum was made at 2012 conference on sustainable development, which is also known as Rio Plus 20. Okay, and headquarters of this forum is in New York, USA, and parent organizations like this forum acts under two main bodies. These are UN Economic and Social Council and UN General Assembly. Okay, and title of this report was Decade of Action Taking SDGs from Global to Local. Okay, is all about that whatever action has been taken in the last 10 years and where we are not only focusing on national levels but also at local levels. That is why the report states in the title that taking SDGs from global to local. It's not only कि global level पे ही बस sustainable development goals की बात होगी, local levels पे जो state level है, district level है, उस पर हम क्या काम कर रहे हैं sustainable development goals पे, उसकी भी बात होगी. So this like whole the review was about what progress on the 17 SDGs जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें क्या प्रोग्रेस रही है. व्हाट इज इंडियाज अप्रोच टू लोकलाइजिंग SDGs. अगेन localizing SDGs means taking sustainable development goals to local levels like at district level क्या काम हो रहा है sustainable development goals का, we are going to towards that, and that is localizing SDGs. And strengthening means of implementation. So whatever means is being taken to implement, whatever ways processes are being taken to implement sustainable development goals, how are we strengthening that? All this is being reviewed in this second voluntary national review of India. Some more important points which you should know is that in India, who overall coordinates or monitors the development of sustainable development goals or the progress of sustainable development goals? Obviously the answer is Niti Aayog, as it has also presented the report. Okay, but this is also done in collaboration with Ministry of Statistics and Program Implementation, क्योंकि obviously ये sustainable development goals की progress वगैरह review करने के लिए आपको data चाहिए, facts चाहिए, तो वो कौन देगा? Statistics वाली ministry. तो इसीलिए Ministry of Statistics and Program Implementation के साथ मिलकर नीति आयोग coordinate करती है, monitor करती है कि क्या काम हो रहा है country में towards sustainable development goals. Okay, and another important fact is Public Accounts Committee actually looks after the legislative oversight, like whatever is the if there is some agenda set that इंडिया ने कुछ सेट किया कि हमें इतना करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम, तो नीति आयोग ने भी फिर सारी रिपोर्ट्स निकाली या उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज ने सारी रिपोर्ट्स निकाली, तो उस पे जो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट होता है, मतलब आगे हमें क्या लॉज लाने चाहिए टू फुलफिल ऑल दीज एजेंडाज, उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काम करती है एंड यू शुड नो दिस. ऑल्सो कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे ग्राम स्वराज अभियान. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दें कि ग्राम स्वराज अभियान एक्चुअली में किस चीज से रिलेटेड है, तो थोड़ा मुश्किल है ऐसे बताना इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि नाम में ऐसा कुछ है ही नहीं. ग्राम है, स्वराज है, अब स्वराज तो हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं ना, बट
you should know that this is related to local planning processes. So Gram Swaraj Abhiyan was nationwide campaign to mobilize people, लोगों को जागरूक करने के लिए, and the key stakeholders, जो भी stakeholders हैं like administration के लोग, everyone सबको जागरूक करने के लिए campaign चलाया गया to intensify the local planning processes. मतलब जो भी लोकल लेवल पे प्लानिंग हमें करनी है टू फुलफिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको ही इंटेंसिफाई करने के लिए ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ऐसे प्लान करेंगे, आप अपनी प्लानिंग प्रोसेसेस को सही करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, तो आपका जो गांव है, ग्राम है, वो होता है ना, फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस, एक स्वराज प्राप्त कर लेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम अगेन इज, जैसा आप देखिए, एस्पिरेशनल नाम पे फोकस करते हैं. तो अगर मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ, है ना, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनूं, वो भी एक एस्पिरेशन है, नाम में भी एस्पिरेंट है, आईएएस एस्पिरेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट. ठीक है. तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम भी वही है कि these districts are aspiring to become one of the best, dreaming to become one of the best. So this program is all about, transformation of some low performing districts who have, low socio-economic indicators, जो पिछड़े हुए हैं, थोड़े पीछे हैं अपने डेवलपमेंट में, उनको ट्रांसफॉर्म करके पहले जो उस स्टेट का जो सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह की जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पहले वहां तक पहुंचाना है और उसके बाद उससे भी आगे और अच्छा डेवलप कर पाए, वो है ये प्रोग्राम. ओके. टू basically transform the low performing districts, और ऐसे 115 districts have been identified in 28 states. Okay. Also there are some frameworks, like कुछ आप determine करने के लिए, that there has to be some indicator on which we get some facts that okay, at in this field this work has been done. Like हम health पे देखेंगे तो health में भी बहुत factors आ जाते हैं कि मैटरनल हेल्थ कैसे है, बच्चों की हेल्थ कैसी है, बूढ़े लोगों की हेल्थ कैसी है. सो ऑल दीज इंडिकेटर्स, like there are 297 indicators across all 17 sustainable development goals in the national indicator framework. तो इस framework में हम देखते हैं कि एक्चुअली में कितना काम sustainable development goals के लिए कर रही है हमारी कंट्री. ओके. और स्टेट लेवल पे भी स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स हैं, बट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ये फुल्ली अभी डेवलप नहीं हुई है इंडिया में. स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स हैव बीन डेवलप्ड बाय ओनली 60% ऑफ द स्टेट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स हैव बीन डेवलप्ड बाय अबाउट 30% ऑफ द स्टेट्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, यहाँ पे भी यही सब देखने के लिए होता है कि क्या प्रोग्रेस हुई, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी रैंकिंग, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ रेमेडीज हमें लाने हैं, तो उसको ट्रिगर करने के लिए क्या रेमेडियल एक्शन है, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में देख सकते हैं आप. एंड दिस इज ब्रॉट बाय नीति आयोग अगेन. ओके. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात जब भी होगी तो आपके दिमाग में पहला जो चीज आना चाहिए वो था नीति आयोग. ऑल्सो क्योंकि ये एक इशू है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आफ्टर प्रीलिम्स करेंगे. लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी इन लाइक चैलेंजेस, कि हम लोगों को जो ऐसे रिव्यूज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, रिपोर्ट्स जो हैं, वो हमको थर्ड पार्टी से लाना चाहिए, ताकि थोड़ा अनबायस्ड रिपोर्टिंग हो उस पे. उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, लाइक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज ब्रॉड. ये बहुत लाइक पॉपुलर रिपोर्ट है. इसमें बताते हैं कि होता है ना कि आज के टाइम में लाइक 6th-7th का बच्चा किस लेवल पे केपेबल है, एजुकेशन की क्या लेवल है कंट्री में, दैट इज ऑल स्टेटेड इन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो रिसेंटली आई थी 2019 में. और उसने रिपोर्ट भी किया था कि हायर स्टैंडर्ड्स के बच्चे भी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं जानते, लिखना नहीं जानते. So all this is reported in annual status of education report, but this is not brought by any ministry or any government body, but by NGO Pratham. तो ये आपको पता होना चाहिए. This can be asked that annual status of education report is brought by NGO Pratham. तो ऐसा ही कुछ हमें sustainable development goal के लिए भी करना चाहिए. This has been proposed in the article. And since the whole talk is about sustainable development goals, so we should have an idea about all the 17 sustainable development goals. So first, sustainable development goal is no poverty. Obviously, सारी बातें गरीबी से शुरू होती हैं, इसीलिए first is no poverty, second is zero hunger, third is good health and well-being, fourth is quality education, fifth
gender equality. Sixth, clean water and sanitation. Seventh is affordable and clean energy. अभी सेवेंथ से मैं थोड़ी सी कहानी आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपको वैलेंटाइन वीक पता है, जो अभी तक पता हो ही जानी चाहिए थी, तो सेवेंथ से शुरू होती है वैलेंटाइन वीक, रोज डे होता है सेवेंथ को। तो इसीलिए आप ऐसे याद रखना कि जो सेवेंथ रोज डे होता है उसमें आपको बहुत एनर्जेटिक रहना होता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी बचानी होती है क्योंकि अभी पूरा वीक बाकी है। सो सेवेंथ इज ऑल अबाउट एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन। ओके, और 8 से आपका काम शुरू हो जाता है, वो चॉकलेट एंड टेडी और क्या क्या डेज जो हैं वो सारे शुरू हो जाते हैं। सो फिर 8th गोल इज अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होती, इकोनॉमिक डिक्लाइन जरूर हो जाती है वैलेंटाइन वीक में, बट या we have to remember decent work and economic growth. Ninth is industry innovation and infrastructure. You need to get innovative in your proposals. So ninth is all about industry innovation and infrastructure. 10th is about reduced inequalities. ओके, सो ये पिंक जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे गुलाबी आंखें याद आ जाती हैं। आई डोंट नो लाइक उस लिरिक्स का क्या बेसिक आइडियोलॉजी थी, क्योंकि मैंने जब पिंक आईज गूगल किया तो मुझे कंजंक्टिवाइटिस के फोटोज आए। सो आई वाज ऑलवेज लाइक यार गुलाबी आंखें, कुछ और भी कलर हो सकता था, बट या। तो 10th याद रखिएगा, reduced inequalities, गुलाबी आंखें। ओके, पिंक डब्बा। 11th is sustainable cities and communities. 12th is responsible consumption and production. तो ये भी याद रखिएगा कि 12th जो है responsible consumption and production होना चाहिए, which is very very important। आज नहीं तो आप कितना भी काम कर लो, अगर लोग कंज्यूम या ही ठीक से नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो हमेशा खत्म हो जाने रिसोर्सेस। ओके, 13th इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन। एंड 14th जो वैलेंटाइन डे है, दैट इज लाइफ बिलो वाटर। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये आप याद रखिएगा कि आप वैलेंटाइन डे को सॉरी लाइफ बिलो वाटर सेलिब्रेट करेंगे। ओके, और फिर जब 15th को आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो आप जमीन पर आ जाएंगे, इसीलिए लाइफ ऑन लैंड। ओके, एंड 16th जब आप सारी जिंदगी के मोह माया से ऊपर उठ चुके होंगे तो आपको शांति चाहिए होगी, जस्टिस चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे। तो इसीलिए 16th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अबाउट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड 17th जब आप वापस से दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे नए पार्टनरशिप्स के लिए, तो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अबाउट पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप्स की बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हर गोल का बहुत सारा टारगेट है, बट वही है, थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन लेना है। वो ज़्यादा खाना मुंह में ले लेंगे तो आप सही से च्यू नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई फर्स्ट रिमेंबर ऑल दी 17 गोल्स। आप एक बार में 5 गोल उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, 3 बार लिखो, जब वो याद हो जाए फिर अगले 5 की तरफ बढ़ो। पहले ये 17 गोल्स क्या हैं वो याद हो जाए, उसके बाद हम टारगेट्स की तरफ भी धीरे धीरे मूव करेंगे। हर चीज़ मेंशन्ड है, बट वी नीड टू च्यू लेस to digest it better. Okay. Next topic is about the Consumer Protection Act 2019, which came into force recently, replacing the Consumer Protection Act 1986. So we will see what are the differences between Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. So first is that there was no separate regulator in Consumer Protection Act 1986, but now in 2019 a regulator has been formed, and that is Central Consumer Protection Authority. Okay, CCPA. So you should know this. Again, next point is about consumer court, where like in 1986 act, according to 1986 act, complaint could be filed in a consumer court where sellers defendant office is located। मतलब अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी दुकानदार के खिलाफ, तो उसकी ऑफिस जहाँ पे है, ठीक है, जो कंपनी है, कंपनी की ऑफिस जहाँ पे है, आपको वहां पे जाकर केस फाइल करनी होगी। इसको चेंज किया गया है कि नाउ आप जहाँ रहते हैं आप वहीं पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप आई थिंक। क्योंकि अभी कंपनी के ऑफिस में जाके, जहाँ ऑफिस है वहां जाकर मुझे क्यों केस फाइल करना पड़ेगा, तो परेशानी देना हुआ ना कंज्यूमर को। तो वो चीज ठीक की गई है इस 2019 एक्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो पहले कोई लाइबिलिटी थी ही नहीं, कंज्यूमर फिर भी चाहे तो सिविल कोर्ट जा सकता था, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता था। मतलब अगर आपको किसी प्रोडक्ट से कुछ हार्म पहुंच गया तो आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था 1986 एक्ट में। लेकिन 2019 एक्ट में इसको चेंज किया गया है और कंज्यूमर कंपनसेशन मांग सकता है फॉर एनी हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेलकम स्टेप आई थिंक।
ओके, एंड पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन हैज बीन रिवाइज्ड, मतलब पैसे से रिलेटेड कि हो ना केस के अमाउंट, जो भी सूट आप करते हैं उसके कितने अमाउंट के हिसाब से कौन से लेवल पर आप उसको फाइल करेंगे, वो अब अपडेट हुई है, रिवाइज हुई है। जैसे पहले था कि डिस्ट्रिक्ट में आप 20 लाख तक के जो केसेस होंगे वही आप फाइल कर सकते हैं, अभी है कि डिस्ट्रिक्ट में आप 1 करोड़ तक कर सकते हैं। और फिर स्टेट में पहले था कि 20 लाख टू 1 करोड़ कर सकते थे, तो अभी स्टेट में 1 करोड़ टू 10 करोड़ हो गया है। नेशनल में पहले था कि अबव 1 करोड़ हो जाए तो फिर आपको नेशनल लेवल पर फाइल करना है, लेकिन अभी वो अबव 10 करोड़ हो गया है, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रिक्ट ही अप टू 1 करोड़ पहुंच गया है ना। तो दैट इज वाई, तो ये तो जुरिस्डिक्शन देखिए रिवाइज होता रहता है ओवर द टाइम बीइंग, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी वैसे ही घटती रहती है ना, तो इसीलिए नाउ द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हैज बीन रिवाइज्ड। और ई कॉमर्स की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी 1986 के समय में, मतलब ऐसा कोई उतना फिर वो फायर ही नहीं था ई कॉमर्स का। अभी वो ई कॉमर्स आई है, तो ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था 1986 एक्ट में, एंड दैट हैज बीन ब्रॉट इन 2019 एक्ट। लाइक ऑल द रूल्स विच आर एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट सेलिंग, जो नॉर्मल सेलिंग के लिए एप्लीकेबल है, वो ई कॉमर्स के लिए भी एक्सटेंडेड है। ओके, लास्ट इज मीडिएशन सेल्स। पहले कोई ऐसा लीगल प्रोविजन नहीं था मीडिएशन के लिए, बट नाउ कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, तो मीडिएशन के लिए भी कोर्ट रेफर कर सकती है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज दैट यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द मीडिएशन, मतलब जो भी फाइनल हुआ आफ्टर मीडिएशन यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट दैट। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस में है, जैसे कि अगर आपके जो कंप्लेन आपने की, अगर उसकी एडमिसिबिलिटी पे डिसाइड ही नहीं हुआ 21 डेज के अंदर कि वो एडमिसिबल है कि नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कंप्लेन जो है रजिस्टर हो जाएगा। ओके, दैट विल बी डीम्ड एडमिसिबल। Okay, again, no appeal against settlement through mediation, as I already said that. And e-commerce platforms, इनको आप कोई भी complain करते हो, कोई भी consumer complaint होती है, so they have to acknowledge the receipt that yes, we have received the complaint, that they have to acknowledge within 48 hours, and also they have to resolve the complaint within 1 month. ठीक है, तो within 48 hours पहले तो उनको acknowledge करनी है, और within 1 month they have to resolve the complaint. Okay. नेक्स्ट इज इफ सम ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्विक्टेड, तो जो फर्स्ट कन्विक्शन है, मान लीजिए गिल्टी फाउंड हुई, फर्स्ट कन्विक्शन में आपका जो लाइसेंस है वो अप टू 2 years के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। एंड फ्रॉम सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, लाइक और सेकेंड और उसके बाद वाले कन्विक्शन के लिए लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड एज वेल बाय द कोर्ट। Okay, and another fact is for filing cases up to 5 lakh there is no fee, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी भी बनाई गई है अंडर द एक्ट 2019, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, विच विल बी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वाइस चेयरपर्सन विल बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड अदर मेंबर्स विल बी like 34 other members from different fields. Also एक important चीज that from like 5 regions, जो नॉर्थ रीजन है कंट्री का, साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, from each of these regions, from 2 states, we will need a minister in charge of consumer affairs. तो इस काउंसिल में हर इस रीजन से दो दो स्टेट करके, हर रीजन से 2 स्टेट के मिनिमम मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ये काउंसिल है, यहाँ पे बैठकर डिस्कस करेंगे, एडवाइजरी बॉडी है ये, फाइनल आगे क्या प्रोविजंस आएंगे एंड ऑल दैट, उस पे सारे डिस्कशंस यहाँ पे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इशू ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो ये टॉपिक इसलिए उठकर आया क्योंकि रिसेंटली हरियाणा कैबिनेट क्लियर्ड ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस क्लियर की जिसमें दे सेड दैट नाउ 75% जॉब्स इन प्राइवेट कंपनीज विल बी रिजर्व्ड फॉर लोकल्स, मतलब जो हरियाणा के रहने वाले हैं उन्हीं के लिए 75% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व कर दिए जाएंगे। सो दिस इशू इज डिस्कस्ड इन डिटेल, बट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ से अभी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। नॉर्मली ये मेंस के लिए थोड़ा और डिटेल में कवर किया जाएगा। दैट पहली बात तो एक सर्वे हुई थी बाय सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज इन 2016, विच शोड दैट नियरली 2/3 ऑफ रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, दे वेर इन फेवर ऑफ लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो 2/3 लोगों ने बोला था कि हाँ लोकल रिजर्वेशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, सिमिलर डिमांड्स हैव बीन मेड इन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। एंड
आंध्र प्रदेश ने तो पास भी कर दिया था 75% जॉब रिजर्वेशन टू लोकल्स, बट दिस मैटर इज सब जुडिस इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये भी हाई कोर्ट के अंदर है, जहां पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. व्हाई? बिकॉज दिस वायलेट्स आर्टिकल 14 विच इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी, जो कि ऑब्वियसली नहीं मिलेगी इफ यू आर गिविंग सो मच रिजर्वेशन टू लोकल्स इन अ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन एन एरिया. तो बाकी जो डिफरेंट एरियाज के लोग हैं उनको तो नहीं मिलेगी ना इक्वल राइट्स. अगेन आर्टिकल 16 भी वायलेट हो रही है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आर्टिकल 16 में जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं वहां पे एक्सेप्शनल एक चीज है कि हाँ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, बट ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, पार्लियामेंट दे सकती है, वो भी ओनली इन पब्लिक सेक्टर. अगर रेसिडेंस के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन मिलेगा भी तो वो पार्लियामेंट दे सकती है, बट दैट टू इज लिमिटेड टू पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर की कोई बात नहीं की गई है आर्टिकल 16 में भी. ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात भी नहीं की गई है. सो दैट इज वाई यू शुड नो दिस, दैट दिस इशू of local reservation actually violates article 14 and article 16, right to equality and right to equal opportunity. Next we are going to cover international relations related topics. So first topic is India EU relations, that is India European Union relations. So recently 15th India European Union summit has been conducted through virtual medium, of course due to coronavirus situation, and they released a report that is India EU strategic partnership a roadmap to 2025. तो अभी से लेकर 2025 तक क्या करने वाले हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन मिलकर, वो डिस्कस हुआ इसमें, जहां पे they said that high level dialogue to guide negotiations on ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, जो कि बहुत दिनों से डिस्कशन हो रही है, 2007 से आई थिंक अभी तक नेगोशिएशन चल रही है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के लिए, जिससे ऑब्वियसली इंडिया यूरोपियन यूनियन के जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं वो और बढ़ेंगे. तो आप बस प्रीलिम्स फोकस से इतना याद रखिए कि दे आस्क यू दैट बीटीआईए इज बिटवीन होम, लाइक किसके बीच की ये बात है, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात है ये broad based trade and investment agreement. Okay, and also in this whole summit it has been discussed that agreement between India Euratom, that is European Atomic Energy Community, on research and development in peaceful uses of nuclear energy भी की जाएगी, कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे मिलके दोनों, ठीक है, इन फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. And they have adopted declarations on resource efficiency and circular economy. मैंने इसको इतना बड़ा इसलिए किया है because this is again a new term in economy and you should know any new term which is in market right now. तो circular economy क्या है? कुछ नहीं है. अगर आप लीनियर इकोनॉमी देखें, पहले नॉर्मल जो इकोनॉमी होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, वी टेक सम रॉ मटेरियल, वी मेक अ प्रोडक्ट एंड फाइनली वी डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल. ठीक है, टेक मेक डिस्पोज, इस पे हम काम करते हैं. सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता. सर्कुलर इकोनॉमी में हम रिसाइकल करते हैं. ठीक है, सो इफ यू यूज अ प्रोडक्ट यू रिसाइकल इट एंड फ्रॉम दैट रिसाइकल्ड थिंग ओनली यू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एंड देन अगेन यू यूज इट, देन अगेन यू रिसाइकल इट एंड देन अगेन यू मेक इट. सो दिस इज हाउ बेसिकली रिफ्यूज रीयूज रिसाइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर इकोनॉमी में यूज होता है, जहाँ पे कुछ भी हम डिस्कार्ड नहीं करते, हम वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, उसी को यूज करते हैं. मिनिमल वेस्ट जनरेशन, मिनिमल रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है सर्कुलर इकोनॉमी में. तो बेसिकली जो रिसोर्स है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होता है. ओके, also India and European Union have decided to launch a dialogue on maritime security. तो मेरीन में हम कैसे अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे पानी वाले जगहों में, वो उसकी बात हुई है. एंड दे हैव आल्सो रिन्यूड देयर एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक कोऑपरेशन. तो साइंटिफिक कोऑपरेशन तो देखिए कोई भी आप कुछ भी कोई भी सबमिट होता है, मुझे लगता है उसमें एक तो ये टॉपिक तो रहता ही है इनकी, अग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक कोऑपरेशन. तो दैट आल्सो विल बी रिन्यूड. And since we're talking about India EU relations, तो एक program है Mobilize Your City. We need to know about that. So it is an like program where they're talking about making sustainable, the whole urban transport or urban mobility systems. So how like यहाँ पे ये लोग assist करते हैं आपको plans बनाने में, like sustainable urban mobility plan, which is made for cities and for national, like for countries, national policies and programs. तो ये plans बनाने में आपको हेल्प किया जाता है. एंड दिस होल प्रोग्राम इज फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी. और इंडिया के लिए अभी नेशनल लेवल पे ये जो मोबिलाइजर सिटी प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट कर रही है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ऑब्वियसली अर्बन की बात है तो
इन इम्प्रूविंग देयर सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, तो जो भी अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इसके लिए मोबिलाइज योर सिटी असिस्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और सस्टेनेबल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम इन्वायरमेंट को ऐसे यूज करें कि प्रेजेंट हो या फ्यूचर हमारा इन्वायरमेंट सही सुरक्षित रूप में रहे। ओके, हम एक्सप्लॉइट ना करें इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा। एंड लोकल लेवल पे 3 पायलट सिटीज़ हैं, नागपुर, कोची एंड अहमदाबाद। तो लोकल लेवल पे मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम जो है इन्हीं 3 पायलट सिटीज़ में शुरू की गई है इन ऑर्डर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो यहाँ पे सस्टेनेबल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यही नागपुर, कोची और अहमदाबाद में अभी शुरू हुआ है। यहाँ पे हम ऐसे जो सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्लान्स है मोबिलाइजर सिटी प्रोग्राम के अंदर, उसमें हम ऐसे प्लान्स बनाएंगे, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को रिवैम्प करेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है अर्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उसको कम किया जा सके। ओके, और MYC program in India is funded by European Union and its implementation is supported by ये फ्रांस की एक एजेंसी है, एजेंसी फ्रांसीसी डे डेवलपमेंट। तो ये यूरोपियन यूनियन और फ्रांस जो है इंडिया को हेल्प कर रहे हैं इन मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम। Next topic is Chabahar Jahidan Railway Line. So this topic is very very important for map also. तो यहाँ पे हम पहले locations देख लेंगे कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, जाहिदान कहाँ है और बाकी क्या important locations हैं। prelims perspective में ये important हो जाता है। तो चाबहार पोर्ट is in Iran and you can see it is here. Okay, this is star marked. तो यहाँ पे इसके नीचे आप देखिए गल्फ ऑफ ओमान है और जाहिदान है यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो इन ईरान शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो इसी रेलवे लाइन की बात हो रही है, चबाहर टू जाहिदान। तो न्यूज ये है कि ईरान इज गोइंग टू प्रोसीड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रेलवे लाइन विदाउट इंडिया। तो पहले जो था एक ट्राइलैटरल अग्रीमेंट थी कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर इस रेलवे लाइन को बनाएंगे और अभी ईरान जो है ये कंस्ट्रक्शन विदाउट इंडिया प्रोसीड करने वाली है क्योंकि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ गो अहेड या और कुछ डिलेज भी हो रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो इसीलिए ईरान प्रोसीड कर रही है। बट दे हैव इंस्टिगेटेड दैट इंडिया कुड ज्वाइन द प्रोजेक्ट एट अ लेटर स्टेज। तो इंडिया स्टिल हैज होप कि अगर बाद में इंडिया को चाबहार पोर्ट में फिर से इंटरेस्ट है या वो वापस से इसको प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फैक्ट दैट इन अफगानिस्तान जारंज टू देलाराम ये जो हाईवे थी, ठीक है, तो ये हाईवे में इंडिया ने फंडिंग दी थी। तो ऑब्वियसली इंडिया इज इंटरेस्टेड इन दिस, बट राइट नाउ यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पे और बहुत सारी फैक्टर्स हैं, चाइना का भी इंटरेस्ट आ गया इधर, तो उसकी वजह से इंडिया इज नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट, बट वी कैन एक्सपेक्ट इंडिया टू बी एक्टिव हियर अगेन इन फ्यूचर। ऑल्सो ये चाबहार पोर्ट की तरफ इंडिया का ध्यान इसलिए इतना था ये रेल प्रोजेक्ट के लिए भी बिकॉज इन द लॉन्ग रन it was proposed that it will be connected to international north south transport corridor. So this proposal was actually about linking several countries in the line, जैसे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, काइंड ऑफ उस टाइप का समझ लो। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी प्रपोज किया गया था विच वुड लिंक मुंबई टू मॉस्को, जिसका नॉर्थ एंड मॉस्को होता और साउथ एंड होता मुंबई। ओके, मल्टी मोड नेटवर्क होती, मतलब शिप, रेल, रोड सारी चीजों को यूज किया जाता फॉर मूविंग गुड्स। तो ट्रेड के लिए आप सोचो इंडिया वुड बी कनेक्टेड टू ईरान, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो इंडिया को सारी जगह का एक्सेस मिल जाता। अब इंडिया चाबहार पोर्ट में तो इसलिए ही इंटरेस्टेड थी ना क्योंकि उसको पाकिस्तान को बाईपास करना था। होता है ना कि बिना पाकिस्तान घुसे इंडिया वुड मूव यहाँ से अफगानिस्तान। तो वो अफगानिस्तान में घुसने के लिए इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो अगर वो फिर और भी जो ये एक प्रपोज्ड कॉरिडोर था अगर ये आ जाए तब तो फिर इंडिया विल गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ रीजन एंड ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट की बात हुई है इस आर्टिकल में विच आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस फ्रॉम प्रिंस परस्पेक्टिव। बंदरे जास्क पोर्ट, कोई भी पोर्ट जो न्यूज़ में है रिलेटेड है उसको आप अच्छे से लोकेशन उसका मैप में देख लीजिए। बंदरे जास्क पोर्ट इज लोकेटेड एट जस्ट 350 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चाबहार पोर्ट। तो आप समझ लो चाबहार पोर्ट यहाँ पे है थोड़ा और आपका बंदरे जास्क जो है
उससे 350 किलोमीटर्स अवे यहाँ पर है। एंड यू कैन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है यहाँ, जहाँ पे इट इज बिटवीन यूएई एंड ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन यूएई एंड ईरान। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। और बांदार ए जस पोर्ट पता होना चाहिए विच इज इन ईरान। चाबहार पोर्ट यू नो इट इज इन ईरान। जाहेदान लोकेशन कहाँ पे है, ईरान में, पूछ लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज करके। फिर अफगानिस्तान में जारंज और दिलारम है, तो ये हाईवे है, तो ये लोकेशंस भी आपको जानना चाहिए। और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ऑब्वियसली, जिसको इंडिया एक्सेस नहीं कर पाती, इसीलिए चाबहार पोर्ट की तरफ फोकस किया था। ओके। और गल्फ ऑफ ओमान भी है यहाँ पे, सो यू शुड नो दिस। ये है आपकी ओमान। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। Next is United Nations Convention on the Law of the Sea, UN clause. So before the news, we need to understand what is this convention about. So India signed this convention in 1982 and ratified in 1995. तो obviously convention law of the sea पे है, मतलब sea में कैसे regulation होगा उससे related है. And this convention created three new institutions. Those were International Tribunal for the Law of the Sea, जिसका नाम से ही समझ में आता है कि independent एक judicial body थी, जिसमें 21 independent members आएंगे। और इस इनके मेंबर्स में ये जो स्टेट्स, जो पार्टी स्टेट्स थे कन्वेंशन के, वो भी, और अगर जो पार्टी स्टेट्स नहीं भी थे, लाइक स्टेट इंटरप्राइजेज या प्राइवेट एंटिटीज, वो भी इसके मेंबर्स हो सकते थे इटलॉस के। ओके। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, ये फुल्ली मिनरल रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, रेगुलेशन, ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज, वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देखती है। और इसके मेंबर्स सिर्फ जो पार्टी स्टेट्स हैं वही हो सकते हैं, कन्वेंशन के जो भी पार्टी स्टेट्स हैं। ओके। एंड कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो ये कमीशन आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री क्लेम करती है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, जहां तक एक्चुअली में इस होता है एक कंट्री अपने राइट्स दिखा सकती है मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल्स तक। अगर कोई कंट्री उसके बियॉन्ड क्लेम करना चाहती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कमीशन उसमें उनको हेल्प करती है कि कैसे वो अपने रिक्वेस्ट को, क्लेम को डिजाइन करे, ड्राफ्ट करे, और क्या वो पॉसिबल है। तो उससे सारी चीजें रिलेटेड सीएलसीएस देखती है। एंड इन दिस ऑल्सो देर आर 21 मेंबर्स, बट दीज आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और हाइड्रोग्राफी। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्टी स्टेट्स, जो कन्वेंशन के जो पार्टी स्टेट्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये जो हमारी कन्वेंशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठा के लाती है, वो है जोनिंग। ठीक है, तो ये पूरी जो सी एरिया है उसको 5 जोन्स में डिवाइड करती है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ठीक है, तो इंटरनल वाटर्स आर सिंपल, यहाँ पे फुल सोवरेनिटी होती है हर एक कंट्री की, अपने जितना उनके अपने लैंड पर होती है। ओके। टेरिटोरियल सी में होता है कि सरफेस, सीबेड, सबसॉइल, एयर स्पेस, सब जगह। टेरिटोरियल मतलब ये पूरा नेशनल एयर स्पेस है, मतलब यहाँ पे जो कंट्री है उसका एयर स्पेस पे भी राइट्स होते हैं और सी के पे तो राइट्स होते ही हैं। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल सी में सारे राइट्स होते हैं आपके पास। कंटिगुअस जोन में जो है, आपके पास कोई एयर स्पेस के राइट्स नहीं होते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से इंटरनेशनल एयर स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 12 देख रहे हैं आप, तो बेस लाइन हो गया आपका इंटरनल वाटर्स, जहाँ पे आपके खत्म हुए वहां पे आपका बेस लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आप फॉरवर्ड जाओगे तो टेरिटोरियल सी का आपका रीजन मिल गया। उससे भी आगे 12 नॉटिकल माइल्स जाएंगे तो कंटिगुअस जोन हो गया। और 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1800 मीटर्स। ठीक है, 1850 समथिंग। तो वो आपका हो गया नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल की ये मेजर होती है। ठीक है, तो कंटिगुअस जोन हो गया अगला जो 12 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, कंटिगुअस जोन में आपके पास एयर स्पेस के राइट्स नहीं होते, यहाँ से इंटरनेशनल एयर स्पेस शुरू हो जाता है। आपके पास राइट्स होते हैं सिर्फ ओशन सरफेस और फ्लोर पे। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो एक्चुअली बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जाती है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होता है कि आपके पास सिर्फ रिसोर्स के राइट्स होते हैं। ठीक है, आप एक लिमिट के बाद, जैसे टेरिटोरियल सी और के बाहर आप ऐसे फ्लाइट्स को रोक नहीं सकते, ये सब नहीं कर सकते, आप प्रोहिबिट या लिमिट नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वही आपका जैसे कमीशन जो है ना, लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो वहां जाकर अगर आपको लगता है कि आप एक्सटेंड करवाने वाले हैं तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली आपके पास सिर्फ रिसोर्स राइट्स होते हैं, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला गया है। ओके। और हाई सीज जो है, तो हाई सीज बियॉन्ड किसी भी नेशनल जुरिस्डिक्शन होती है। यहाँ पे आप सिर्फ कोई भी कंट्री जो है अपना एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सकती है, रिसर्च वगैरह कर सकती है, ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। ओके।
Okay, so why this convention is recently in news? United Nations Convention on the Law of the Sea. तो recently परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक्चुअली अपनी रूलिंग दी है एनरिका लेक्सी केस में, जो मैंने मेंशन भी किया था फर्स्ट स्लाइड में कि एनरिका लेक्सी केस. ओके, एनरिका लेक्सी केस क्या था? दैट टू केरलाइट फिशरमैन दे वर किल्ड इन 2012 बाय टू इटालियन मरीन्स. तो उसके बाद इंडिया ने ये दो इटालियन मरीन को डिटेन कर लिया था, अगेंस्ट विच इटली फाइल्ड केस इन 2015, and they had taken the matter to इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सी, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर बनाया गया था, यूएन क्लॉज के अंदर. लेकिन इटलॉस ने इस मैटर को रेफर कर दिया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, ठीक है, जिसने अभी रूलिंग दी है. ठीक है, तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी एक कन्वेंशन के अंदर बनाया गया था, कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ठीक है, विच वॉज कंक्लूडेड एट द हेग इन 1899. तो मतलब ये हेग में हुई थी 1899 में, वहां पे कन्वेंशन आई थी, कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और वहीं पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बर्थ हुआ. ओके, एंड इसीलिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो हेडक्वार्टर है वो भी हेग नीदरलैंड्स में ही है. ओके, सो फाइनली क्या डिसीजन दिया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने? तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि इंडिया, ठीक है, ये कंपनसेशन इंडिया डिमांड कर रही है इटली से, दैट इज फाइन, इंडिया इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम इटली, बट इंडिया डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द इटालियन मरीन्स, क्योंकि ये लोग इम्यूनिटी, इनको ये एंटाइटल्ड है इम्यूनिटी के लिए, वो एक सब स्टेट के अंदर आते हैं, आप उनको डिटेन करके नहीं रख सकते. ठीक है, तो ये चीज कहा गया है पीसीए के द्वारा. ऑल्सो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट इटालियन वेसल, उन्होंने राइट एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को ऑब्वियसली वायलेट किया है अंडर यूएन क्लॉज. एंड लास्टली द अवार्ड इज फाइनल एंड विदाउट अपील एज इंडिया इज अ पार्टी टू द यूएन क्लॉज. ठीक है, तो क्योंकि इंडिया पार्टी है यूएन क्लॉज के लिए, तो जो भी ये रूलिंग है ये फाइनल है और विदाउट अपील, आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते. एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ट्रिब्यूनल डिसीजन इन ट्यून विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 में, 51C और D में इस चीज को कहा गया है दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, एंड ऑल्सो वी नीड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो कि यहाँ पे की गई है. तो इसीलिए आर्टिकल 51C और D को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ट्रिब्यूनल डिसीजन. एंड दिस इज वेयर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू कैन मेल मी, एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग आई will provide you the details. If you are not capable of contributing, that is also fine, you will get the notes for free. Okay, so mail me जो भी आपकी इच्छा हो. All right, so thank you so much for watching the video and I will see you in the next video. Bye bye.